Namaskar, my all dear student of class 12. I'm English mentor Shikha, and today I brought poem number 6 from our main course book Flamingo, written by Adrienne Rich, Aunt Jennifer Tiger. The name of the poem is Aunt Jennifer's Tiger. We'll see the theme of the poem, then some poet's information about whatever is given in the poem, then tone, conclusion, message given through the poem, line by line explanation, and we'll discuss the literary devices as well. And at last, I'll cover some textual questions, uh, including some extract based question that you can see in your exams. So let's start. Our Jennifer's Tiger, written by Adrienne Rich. She was born in 1929 in Baltimore, Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. She has published 19 volumes of poetry, 3 collection of essays and some writing. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. The poem Aunt Jennifer's Tiger addresses the constraint of married life a woman experiences. So Adrienne Rich always indulge with the upliftment of the woman. She was related with the contemporary women's movement. Contemporary, you can say, the mixture of the traditional and the modern life, where the women are treated, they are discriminated, they are tortured, maltreated by the society, and against it, whatever type of movement and revolution is gone, Adrienne was a part of that, and through her writing she was giving a kind of sympathetic and positive and independence view towards the discrimination of the women. जितने भी अत्याचार होते हैं जो अगेंस्ट हैं, बहुत सारी जो वुमेन है उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है सोसाइटी में, उसके खिलाफ जितनी भी आवाज़ें उठती हैं उससे रिलेटेड राइटिंग्स एड्रीन रिच लिखती थी. इसमें लगभग उन्होंने 19 वॉल्यूम लिखे पोइट्री के. दोज ऑल वर रिलेटेड एंड फोकस्ड on the upliftment of the women condition in the society. 3 collections essays के 3 collections means कलेक्शन का मतलब बुक्स थी, जैसे 19 वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स का मतलब बुक थी, उसमें बहुत सारी पोइम्स थी. सेम ऐसे ही जो 3 कलेक्शंस थे उनके एसेस के काफ़ी सारे एसेस थे उसमें, और वो भी फोकस करते थे वुमेन की कंडीशंस पे, अपलिफ्टमेंट, उनसे रिलेटेड चलाए जाने वाले मूवमेंट पे. इसके अलावा वो रेसिज्म और मिलिटरिज्म भी उनकी राइटिंग्स में दिखाई देता है. मीन्स हाउ द वुमेन ऑफ वन रेस आर ट्रीटेड इन्फीरियर और सुपीरियर दैन द अदर्स. ठीक है, इसके बारे में भी उन्होंने लिखा. मिलिटरिज्म इज कॉल्ड हाउ द कंट्री थ्रू देयर मिलिट्री पावर वांट टू रेज द कंट्रीज कंडीशन, वांट टू प्रूव देमसेल्व्स वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द एनिमीज एंट्रेंस इन द कंट्री. तो उसके बारे में भी इन्होंने लिखा. मीन्स डिफेंस से रिलेटेड भी इनकी राइटिंग में झलक देखने को मिलती है. इस पोम में आंट जेनिफर्स टाइगर में स्पेशली उन्होंने दिखाए हैं कॉन्स्टेंट या वी कैन से लिमिटेशंस of a woman after the marriage, that how the women are confined to live in some limitation when she got married. शादी होने के बाद किस तरह की limitations हो जाती हैं, क्या वो कर सकती है, कितनी चीज़ों को करने की उसको परमिशन नहीं होती है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं. थीम देखते हैं पोम की. द थीम ऑफ वुमेन एंड फेमिनिज्म कैन बी फाउंड इन दिस पोम. वुमेन और फेमिनिज्म की थीम देखने को मिलती है. आंट जेनिफर्स टाइगर साउंड लाइक अ beat of a good time. In reality, it is about a woman whose life has been limited by the particulars or male-dominated society in which she lives. But the poem does not give us any fact about this. It does not tell us, for example, like Aunt Jennifer was not allowed to go to college, that Aunt Jennifer's husband did not give her any say in financial matter. But the poem does formally suggest that Aunt Jennifer's prospects in life have been limited by her gender and also by her marriage, which left her terrified in her bad times. So as we can see that the main character of Aunt Jennifer, as the title suggests, it depicts
इसका मेन कैरेक्टर है वो आंट जेनिफर है। वो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहती है। आंट लगाया गया है मीन्स शी हैज़ गॉन थ्रू विद सो मैनी ईयर्स आफ्टर हर मैरिज लाइफ, काफ़ी टाइम हो गया है उनकी शादी को हुए, और अभी भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि आंट जेनिफर है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए अलाउ नहीं है अपने हस्बैंड की तरफ से। मीन्स अगर वो अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हैं, शी सीक्स द परमिशन ऑफ हर हस्बैंड। बहुत सारी लिमिटेशंस हैं शादी के बाद जो उनको आ गई हैं, उनको उस लिमिटेशन के अंदर रहना पड़ता है। जो मेन चीज़ है सोसाइटी मार्क दैट इज जेंडर। मीन्स अगर आंट जेनिफर बोला जाए हाँ कि शी इज़ अ फीमेल, itself means being a female you are already deprived with so many things। आप वुमेन हो, इस सिर्फ इसी वजह से बहुत सारी चीज़ों से आप वैसे ही डिप्राइव हो जाती हो कि हाँ हम ये नहीं कर सकते, हमको ये करना अलाउ नहीं है। तो यही पोर्ट्रे किया गया है कि यहाँ पर आंट जेनिफर थ्रू आउट ऑफ हर लाइफ कैसे वो टेरिफाइड रहती हैं, जो उनके बॉडी जेस्चर्स में भी दिखाई देता है। तो इस थीम में हमको क्या दिखाई देता है, द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द मैरिड लाइफ and the feminism means how the women are not able to allow or to raise their voice in male dominant society, right? So this is the basic theme. Before we read, what does the title of the poem suggest to you? Are you reminded of other poems on tigers? Many of the poems on tigers have been written. We have been just studying since our childhood in so many classes. Means I think from standard 1 or 2 tigers poem have been introduced with us. बहुत सारी poem लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से टाइगर को वहाँ पे जो हमको बताया गया है, टाइगर है, टाइगर के जो उसका हैबिटेट है वहाँ के बारे में बताया गया है, टाइगर्स की एक्टिविटी के बारे में, उससे रिलेटेड एनिमल के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ पे टाइगर को बहुत अलग पोर्ट्रे किया गया है। यहाँ पे टाइगर को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करके उसका इनडायरेक्ट मीनिंग और उसका इनडायरेक्ट प्लेस बताया गया है सोसाइटी में इस पोम में। चलो ये देखते हैं। सबसे पहले स्टैंजा नंबर 1, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रैंक्स अक्रॉस द स्क्रीन। एक एक चीज, एक एक वर्ड देखेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द पोम वेल, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आजकल जितने भी आते हैं उसमें if 4 options are given, all 4 options seems right, you have to just choose most appropriate, right? So you cannot just imagine the thought or we can say the judging element, what's going on in the एग्जामिनर्स माइंड, क्या सोच कर पेपर सेट किया गया है और कौन सा अप्रोप्रिएट, बहुत ज़्यादा सही नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा हो सकता है वो हमको देखना है। तो उसके लिए एक एक वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। आंट जेनिफर्स टाइगर, यहाँ पे बताया गया कि आंट जेनिफर के टाइगर हैं। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आंट जेनिफर के टाइगर, क्योंकि टाइगर इज़ नॉट अ पेट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल। जो मेन कैरेक्टर है वो है आंट जेनिफर, उनके टाइगर। यहाँ पे टाइगर को बताया गया है विच शी इज डूइंग विद एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, वो टाइगर की एम्ब्रॉयडरी बना रही है, उसको जो धागे से एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो बना रही है। तो वो खुद टाइगर बना रही है, इसीलिए टाइगर को आंट जेनिफर के टाइगर बोला गया है। prance across the screen. Now prance is called to take a leap or to take a jump. मैं लिख देती हूँ यहाँ पर जंप या लीड आप बोल सकते हो। किस तरह से वो छलांग लगा रहा है, किस तरह से वो हॉप कर रहा है across a screen. Now what is a screen? Screen is this embroidery ring. जो एम्ब्रॉयडरी रिंग है उसकी जो स्क्रीन है वो बोला गया है यहाँ पर। तो ये क्या बोला गया है? एम्ब्रॉयडरी रिंग, एम्ब्रॉयडरी स्क्रीन। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी की जो स्क्रीन है उसके बाहर जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो जिस एम्ब्रॉयडरी स्क्रीन पे उसके जो पिक्चर बना रही हैं, जो उसको एम्ब्रॉयडर्ड कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो स्क्रीन से बाहर जा रहा है। वो इस तरह से छलांग लगा रहा है बिकॉज टाइगर्स आर वेरी वेल नोन ऑफ वेरी फास्टेस्ट एनिमल, कितनी तेज़ी से वो छलांग लगाते हैं, तो वही पोर्ट्रे कर रही हैं वो। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जिस एम्ब्रॉयडरी स्क्रीन में आंट जेनिफर वो अपने टाइगर्स एम्ब्रॉयडर्ड कर रही हैं, स्टिच कर रही हैं, वो उस स्क्रीन से बाहर निकलते हुए शो हो रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन। पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। टोपाज इज द प्रेशियस स्टोन ऑफ येलो और ब्लू कलर। येलो और ब्लू कलर इस तरह का कलर है। ये कलर सिमिलर किया गया है कि टाइगर से। ठीक है, टाइगर का कलर भी जस्ट सिमिलर टूवर्ड्स द येलो एंड ब्राउनिश होता है, वही टोपाज का कलर भी होता है। समवेयर इज ब्लू, ब्लू
color topaz also found, but यहाँ पर जो मेन बताया गया है वो येलो कलर का और येलो ब्राउनिश टोपाज बताया है. Denizens are called a person or an animal or a plant that lives or grows or found in a particular place. तो यहाँ पे कोई भी इस तरह का पर्टिकुलर, यहाँ पे किसको बताया गया है डेनिजन में, एनिमल को पोर्ट्रे किया गया है. यहाँ पे एनिमल के लिए आया है. एनिमल कौन है? टाइगर है, जो कहाँ रहता है? पर्टिकुलर प्लेस मतलब जो जंगल में रहता है. हम बोल सकते हैं ब्राइट टोपाज डेनिजन. ये किसके लिए आए हैं? ये किसको फीचर कर रहे हैं? ये फीचर कर रहे हैं टाइगर को. वो टाइगर जो आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडर्ड कर रही हैं. वो कैसे हैं? वो ब्राइट हैं, येलो ब्राउनिश कलर के हैं और वो कहाँ रहने वाले हैं? वो जंगल में रहने वाले एनिमल हैं. ऑफ द वर्ड ऑफ ग्रीन. ग्रीन का मतलब क्या हो गया? कौन सा वर्ड है उनका? जंगल या फॉरेस्ट. ठीक है, वो जंगल में रहते हैं और ये हरे रंग के जंगल में, यानी कि ग्रीन कलर का उनका वर्ड है और उनका खुद का कलर कैसा है? ब्राइट येलोइश ब्राउन कलर है जहां पर वो रहते हैं. मीन्स दैट इज द कंप्लीट हैबिटेट ऑफ दैम. नाउ दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. उनको कोई भी डर नहीं है. यहाँ पे दे अगेन किसके लिए आया है? टाइगर के लिए आया है. डू नॉट फियर, उनको डर नहीं लगता. द मैन, आउटसाइड वर्ड के जो मैन है, बीनीथ इज कॉल्ड अंडर, जो कहाँ खड़े हैं? ट्री के नीचे खड़े हैं. मीन्स यहाँ पर आप मैन को किस फॉर्म में लगा सकते हो? जो मैन है वो यहाँ पे क्यों आएंगे? फॉर हंटिंग पर्पज. तो यहाँ पे हम मैन को हंटर्स के फॉर्म में लगा सकते हैं कि वो कौन है? हंटर्स हैं. मीन्स दे आर देयर. क्यों आएंगे फॉरेस्ट में? भाई कोई रीज़न होगा, वेदर दे आर कमिंग फॉर हैविंग एन एडवेंचरस ट्रैवलिंग राइड, और इसके अलावा वो हंटर आ सकते हैं. तो जो पेड़ के नीचे जो आदमी खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं, वहाँ पे आप उनको इनडायरेक्ट मीनिंग क्या लगा सकते हो? हंटर. अभी मैं आपको सिर्फ लिटरल डायरेक्ट मीनिंग बता रही हूँ, फिर इस स्टेंजा का, हर स्टेंजा का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो जो हंटर्स खड़े हैं पेड़ के नीचे, टाइगर्स को उनका बिल्कुल भी डर नहीं है. यानी कि वो उनके प्लेस पे आए हैं. यानी कि वो जो जंगल है, वो फॉरेस्ट है, वो किसका एरिया है? टाइगर का एरिया है. मीन्स उसका घर है. तो द आउटसाइडर पर्सन इन द फॉर्म ऑफ अ हंटर, इफ दे आर there in the forest and they are standing under the tree and tigers are there, so tiger are having no fear of those hunters. Why? Because outsider have come in their habitat, not they have gone in their habitat. तो उनको कोई भी डर नहीं है. तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि टाइगर्स आर fearless. वो बिल्कुल fearless हैं, उनको किसी का भी डर नहीं है. They pace in sleek chivalric certainty. यहाँ पे अगेन दे किसके लिए आया है? टाइगर के लिए आया है. पेस इज कॉल्ड स्पीड, sleek is called elegant and smooth, and chivalric certainty is called matchless energy, utmost power and strength. मतलब वो यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ और किस पावर के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से स्पीड करते हैं, बहुत ही स्मूथली. If you have been just watched any of the movement of tiger, जब वो दौड़ता है कितना स्मूथली दौड़ता है, पता नहीं चलता है कि एक जगह से दूसरी जगह when he was taking a leap, जब वो लीप लेते हैं कितनी स्मूथली लेते हैं. तो यही लिखा गया है कि जो जिस तरह स्पीड में वो भागते हैं, वो उनकी जो पेस है, जो उनकी स्पीड है, वो बहुत स्मूथ है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. और वो कैसे हैं? दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर हैविंग द अनबीटेबल पावर एंड स्ट्रेंथ दैट नोबडी कैन डिफीट. राइट. तो इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ पे क्या बताया, पूरे स्टैंजा में क्या बताया गया? फर्स्ट स्टैंजा इज टोटली बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ एंड द प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ द टाइगर. कि जो टाइगर हैं यहाँ पर, जो कौन से टाइगर हैं? आंट जेनिफर के टाइगर हैं जो वो एम्ब्रॉयडरी में बना रही हैं. और वो जो टाइगर है वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो किसका सिंबल है? स्ट्रेंथ और पावर का सिंबल है. वो येलो ब्राउन कलर के हैं और वो ग्रीन कलर के फॉरेस्ट या हैबिटेट में रहते हैं. अगर कोई बाहर से आउटसाइडर आ जाता है, दे आर हैविंग नो फियर ऑफ दैम. उनको किसी का डर नहीं है. क्यों? क्योंकि उनमें इमेंस एनर्जी है, एंडलेस और अनबीटेबल पावर है. ये इसका डायरेक्ट मीनिंग हुआ. नाउ इनडायरेक्ट मीनिंग अगर देखें हम, तो आंट जेनिफर इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द सप्रेस्ड वुमेन. जितनी भी सप्रेस्ड वुमेन है वो उनको एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही है. डिस्क्रिमिनेटेड बोल सकते हो आप, सप्रेस्ड वुमेन बोल सकते हो आप उनको, वो उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं. और जो टाइगर हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो टाइगर है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी. राइट. वो कहाँ पे रहते हैं? मेल डोमिनेंट सोसाइटी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यानी कि जो सोसाइटी है जिसमें कि वुमेन रहती हैं, वो किसके द्वारा बनाई गई है? वो कौन डोमिनेंट है, कौन उसका हेड है? वो है मेल.
ठीक है, मेल है वही सारे रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, उनके अकॉर्डिंग की सोसाइटी रन करती है, और वुमेन आर द पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, एंड दैट्स व्हाई वुमेन आल्सो हैव टू फॉलो द सेम रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाइड बाय दैम। तो यहाँ बताया कि जिस तरह से अब जैसे जो सेम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे वुमेन का जेनिफर दे रही, तो जेनिफर आंट हैं जो जिस तरह से टेरिफाइड हैं थ्रू आउट ऑफ हर लाइफ, शी रिमेन सो काम, क्वाइट, टेरिफाइड, हॉरिफिक, ओके, अंडर प्रेशर, वो जिस तरह से रही हैं, नर्वस ऑल टाइम, डरी हुई, सहमी हुई जिस तरह से रही हैं, वो सारे उन वुमेन को पोर्ट्रे कर रहा है जो वुमेन आफ्टर द मैरिज दे हैव जस्ट कॉन्स्टेंट विद देयर लाइफ। वो सारी वुमेन जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती, जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती हैं शादी के बाद। नाउ टाइगर के बारे में मैंने आपसे जो भी बात बोली है यहाँ पर, जो भी इन्होंने एंड्रीन रिच ने बोला है, वो सारा किसको सूट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल डोमिनेंट। यानी कि अगर मेल डोमिनेंट जो सोसाइटी है, जो जंगल को बता रहे हैं कि हमारी सोसाइटी है, दैट इज कंपेयर्ड विद जंगल, कि इस सोसाइटी में जो रहने वाले हैं मेल, उनको किसी का डर नहीं है, दे आर हैविंग द फियर ऑफ नो वन। कोई भी बाहर से आ जाए, बट अल्टीमेटली क्या बोला जाएगा, कितने भी मूवमेंट आप चला लो, वट एवर इज दैट, कोई भी मीन्स कितने भी ज़्यादा आप मूवमेंट चला लो, रेवोल्यूशन कर लो, कितने भी कुछ भी कर लो, बट हमेशा वो जो सोसाइटी है वो किसके नाम से जानी जाती है, मेल के नाम से जानी जाती है, कि हाँ कि वो हैं इसके ओनर, वो हैं उसके हेड, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, दे आर फुल ऑफ पावर। ऑब्वियसली जो सोसाइटी है उसके दो पार्ट हैं, फीमेल और मेल, तो उनमें ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा पावरफुल किसको माना जाता है, मेल को माना जाता है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया गया है, इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। पोएटिक डिवाइसेस आई विल डिस्कस लेटर ऑन, ओके, पहले हम स्टेंजास कवर कर लेते हैं। दिस इज सेकेंड स्टेंजा। Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool. अब आंट जेनिफर की फिंगर, देखो फर्स्ट जो स्टैंजा था हमारा वो भी शुरू हुआ था आंट जेनिफर्स टाइगर, राइट, और जो सेकेंड स्टैंजा है वो हमारा शुरू हुआ है आंट जेनिफर्स फिंगर। नाउ फ्लटरिंग इज कॉल्ड मूविंग, ठीक है, उनकी जो फिंगर है वो मूव कर रही है थ्रू हर वुल। नाउ यहाँ पे वुल बोला गया है जो एम्ब्रॉयडरी का थ्रेड है, जो धागा है, उसको बोला गया है कि वो उसकी जो उनकी जो उंगलियां हैं वो उस पर मूव कर रही हैं। अब आप जब एम्ब्रॉयडरी करोगे तो आप अपने हाथ में नीडल पकड़ोगे, राइट, और एम्ब्रॉयडरी रिंग पर, स्क्रीन पर आपकी जो उंगलियां हैं वो मूव करेंगी, तभी आप एम्ब्रॉयडरी या स्टिच कर सकते हो, ठीक है। तो आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो मूव कर रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। नाउ आइवरी नीडल ये होती है जो कि एलिफेंट टस्क की बनी होती है, जो हाथी के दांत होते हैं, बहुत मीन्स दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत फाइनली कार्व्ड होती है, बहुत शार्प होती हैं ये नीडल्स जो होती हैं। तो ये जो नीडल्स हैं जिससे वो काम कर रही हैं, ये किसकी बनी हुई है, ये आइवरी नीडल है, आइवरी की बनी हुई है, एलिफेंट टस्क की बनी हुई है, और उनको बहुत ज़्यादा वी कैन से ना शी इज़ फाइंडिंग इट्स वेरी हार्ड टू पुल का मतलब खींचना। अब स्टिच करोगे तो फर्स्ट यू हैव टू पुट द नीडल डाउन, पहले आप नीचे करते हो और उसके बाद धागे को ऊपर निकालते हो, राइट। तो वेन एवर यू आर पुलिंग द थ्रेड अप, तो उसके लिए थोड़ी सी तो स्ट्रेंथ लगती है, बट यहाँ पर क्या बताया गया है कि आंट को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत हार्ड फील कर रही है कि वो आइवरी की नीडल को ऊपर पुल नहीं कर पा रही है, इतनी भी स्ट्रेंथ उनमें नहीं बची है कि शी वॉज एबल टू पुल द नीडल अप। The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hat. Massive is called huge, बहुत बड़ा। Weight is called वजन या burden, जो अंकल की वेडिंग बैंड का है। यहाँ पे बैंड से मतलब है रिंग, ठीक है, जो उनके हाथ में अंगूठी है, जो वेडिंग बैंड है, यानी कि जो अंगूठी है उनके हाथ में, जब उनकी शादी हुई थी तो जो अंकल ने उनको अंगूठी पहनाई है उसका वज़न इतना ज़्यादा है कि वो उस वज़न की वजह से अपने फिंगर्स को पुल नहीं कर पा रही हैं, उस धागे को, उस नीडल को पुल नहीं कर पा रही हैं, आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं। तो यहाँ पर वो उनकी कैसे बहुत ज़्यादा बर्डन्ड के तौर पर उनकी फिंगर पे बैठी हुई है। तो ये इसका लिटरल मीनिंग हुआ, राइट। अब इनडायरेक्ट मीनिंग अगर हम देखें तो आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। आंट जेनिफर लाइक टू डू एम्ब्रॉयडरी, उनको अच्छा लगता था, ये उनका हॉबी था। बट जब वेन एवर यू आर डूइंग योर हैबिचुअल वर्क या आप इंटरेस्टिंग वर्क अपना कोई करते हो, तो क्या मीन्स यू आर देयर विथ फुल ऑफ योर माइंड एंड हार्ट, अच्छे से करते हो वो अपना काम।
आंट जेनिफर भी अपना एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्क कर रही हैं, बट शी इज़ नॉट इन द स्टेट, वो इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बची है उनमें कि वो जो धागा है जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी के लिए लिया है वो उसको अच्छे से पुल कर पाएँ। मतलब वो इतना वीक फील कर रही हैं, वो इतना ज़्यादा वीक हो गई हैं, इतनी ज़्यादा टेरिफाइड हो गई हैं। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों से अगर पता चला है कि स्ट्रेंथ कैसे नहीं बची है, एक तो फिजिकल स्ट्रेंथ अगर बात करो तो वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हैं, मेंटल स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो गई हैं। ठीक है, टेरिफाइड मतलब बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। तो फिजिकली एंड मेंटली फ्रॉम बोथ साइड शी इज़ अनस्टेबल। इस डर की वजह से उनके जो हाथ हैं वो कांप रहे हैं, जो फिंगर्स हैं वो मूव कर रही हैं, मूव इज कॉल्ड, ऐसे हिल रही हैं, कांप रही हैं। अगर ये स्टेडी नहीं है, बिल्कुल ऐसे बैलेंस में या कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उनमें जो है स्ट्रेंथ नहीं बची है, उनमें जान नहीं बची है। और ये किस वजह से है? क्योंकि अंकल की जो वेडिंग बैंड है, जब अंकल ने शादी की थी उनको जो फिंगर पे जो रिंग पहनाई थी वो इतना ज़्यादा भारी लग रही है उनको, जिसकी वजह से उनको हाथ ऊपर पुल करना, जो थ्रेड है उसको ऊपर पुल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसका जो वजन है, जो रिंग का वजन है वो बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पे वेट का मतलब है all the limitations, all the responsibilities, all the negativity that was created by the man after the marriage, that all time remains with her. अभी अंकल वहाँ पे नहीं है, उनकी एब्सेंस में वो काम कर रही है, बट उनकी एब्सेंस में भी आंट जेनिफर को अंकल का इतना डर है, इतना ज़्यादा टेरर हो गया है, इतना वायलेंट किया है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया है, उनको टॉर्चर किया है, कि उनकी एब्सेंस में भी आंट जेनिफर इतनी डरी हुई है। अब सोचो, जब ये एब्सेंस में जब ये कंडीशन दिखाई गई है तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इन द प्रेजेंस ऑफ हर हस्बैंड हाउ मच टेरिफाइड शी यूज टू बी। वो कितनी ज़्यादा डरी हुई रहती हैं, उनके जाने के बाद भी उनको ये डर है। अब ये डर किस चीज़ का हो सकता है? लाइक जो भी उनको करना है वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती, खा नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती। मीन्स शी हैज़ लॉस्ट द फ्रीडम आफ्टर द मैरिज लाइफ। ये उनको बताया गया है कि वो जो चीज़ है वो अभी भी उनके हाथ में दिखाई दे रही है, उनके काम में दिखाई दे रही है, उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि वो घर पे नहीं है उनके हस्बैंड, फिर भी उनकी एब्सेंस में भी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। स्टैंजा नंबर 3, व्हेन आंट इज डेड। अच्छा, एक चीज़ देखेंगे हम यहाँ पर, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आया था आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर्स फिंगर, एंड यहाँ पे बताया है आंट जेनिफर्स हैंड। ठीक है, अगेन एंड अगेन सारी चीजें किसको पॉइंट आउट कर रही हैं, किसको बताई गई हैं? मेन लीड में रखकर आंट जेनिफर। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट जो है वो मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, अभी वो मरी नहीं है, मीन्स वेन एवर शी विल मीट हर डेथ, जब वो मर जाएंगी उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं दैट विल लाई, मतलब वो नीचे गिर जाएंगे, मीन्स दैट विल बी लाइफलेस। ओके, जब उनकी डेथ हो जाएगी तो जो उनके हाथ हैं वो कैसे हो जाएंगे? लाइफलेस हो जाएंगे। Still ringed with ordeals she was mastered by. Ordeals कहना चाहिए अ वेरी अनप्लीजेंट और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस, बहुत लंबा एक्सपीरियंस, क्योंकि आंट जेनिफर हैं, शी इज टुवर्ड्स अ ओल्ड एज, वो अब ओल्ड होने वाली हैं। तो वी कैन इमेजिन कितने साल उन्होंने अपनी मैरिज के पास किए हैं, तो कितने सालों का उनको बिटर एक्सपीरियंस है ऑफ मैरिड लाइफ, और उसमें उनको मास्टरी हो गई है। मास्टरी इज कॉल्ड, अब उनको आदत हो गई है, वो सब कुछ सहन करना सीख गई है। पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी शादी के बाद उन्होंने इतना ज़्यादा झेला है, इतना ज़्यादा दुख, तकलीफ़ें, ह्यूमिलिएशन उन्होंने बर्दाश्त किया है कि अब वो इन सब चीज़ों में मास्टर हो गई हैं। तो वो यही बताया गया है कि स्टिल रिंग्ड, रिंग्ड आप बोल सकते हो बाउंड बाय, अभी भी वो बंधी हुई हैं। रिंग यहाँ पे अगेन एंड अगेन ये रिंग बता रही है कि ये रिंग जो है ये उनकी शादी का एक तरह से जो सिंबल है कि हाँ वो मैरिड हैं। उस रिंग में उस रिंग में वो पूरी तरह से बन गई है, उस मैरिज लाइफ के जो सर्कल है उससे वो बाहर नहीं आ पा रही है। शी इज़ नॉट, शी हैजंट फाइंड अ वे और एस्केप। ठीक है, दैट इज जस्ट लाइक अ सर्कल, नो वे टू एस्केप। और वो सारी जो परेशानियां वो आज तक झेलती आई हैं, जितनी भी तकलीफें, उसमें अब उनको मास्टरी हो गई है, वो बहुत ज़्यादा सहन कर चुकी हैं। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो टाइगर हैं जो उन्होंने पैनल में बनाए हैं, पैनल अगैन यहाँ पे किसके लिए आया है? स्क्रीन के लिए आया है, जो एम्ब्रॉयडरी स्क्रीन है उसके लिए आया है। जो पैनल में उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं, विल गो ऑन प्रिंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो हमेशा
प्रेंस करते रहेंगे, वो जंपिंग करते रहेंगे, वो हमेशा फियरलेस रहेंगे। वो कैसे रहेंगे? जंपिंग करते रहेंगे, कोई भी उनको नहीं रोकेगा। मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ आंट जेनिफर। क्या बताया है? आंट जेनिफर की जब डेथ हो जाएगी उसके बाद भी जो उन्होंने टाइगर बनाए हैं दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। वो चेंज नहीं होंगे, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, वो वैसे ही जंप करेंगे, वो वैसे ही फियरलेस रहेंगे। प्राउड मतलब वो उनको किस चीज का प्राउड है कि हाँ सिर्फ मैं ही हूं। मेल डोमिनेंस अगेन यहाँ पे आ जाता है कि वो हमेशा इस तरह से रहेंगे कि हाँ वो कैसे हैं? डोमिनेंट सोसाइटी के हैं। और अनअफ्रेड इज कॉल्ड, वो कैसे रहेंगे? फियरलेस रहेंगे, उनको किसी का भी डर नहीं होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि लास्ट स्टेंजा में क्या बताया है? लास्ट स्टेंजा में बताया है कि आंट जेनिफर ने पूरा अपना लाइफ इस तरह से जो था वो बिताया, बट जो जब वो ओल्ड एज की तरफ है, जब वो मर जाएंगी, उसके बाद भी किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट लेडी हैज़ बीन सफर्ड थ्रू आउट ऑफ हर लाइफ। लेकिन कुछ भी नहीं बदला, वो जैसी थी वो वैसी ही रही, और उसके बाद वैसी ही उनको जाना पड़ा सब कुछ छोड़कर। और उनके जाने के बाद भी जो मेल डोमिनेंस है वो वैसे ही। अगर हम यहाँ पे इनडायरेक्ट मीनिंग निकालें तो जो टाइगर हैं, जैसे कि टाइगर हैं, उनके जाने के बाद वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उन्होंने बनाए थे, प्रेंसिंग, प्राउड एंड अनअफ्रेड। और उनके जाने के बाद जो मेल हैं, मतलब किसी भी वुमेन, यहाँ पे सिर्फ आंट जेनिफर की बात नहीं बताई गई है, जो मेल हैं वो भी कैसे हो जाएंगे? उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल रिमेन द सेम। वो वैसे ही रहेंगे, जो सोसाइटी है उनके नाम से जानी जाएगी। वो फियरलेस रहेंगे, वो हमेशा प्राउड रहेंगे कि विदाउट अस, कि कोई अगर वुमेन आफ्टर सफरिंग थ्रू आउट ऑफ हर लाइफ वो चली गई है, उससे सोसाइटी पे या किसी और की ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, वो वैसा ही रहेगा जैसा था। एंड वो हमेशा कैसे रहेंगे? प्रैंसिंग, जंपिंग, यानी कि दे विल कीप ऑन गोइंग थ्रू विद द टाइम, वो टाइम के साथ चलते रहेंगे। दे आर फेसिंग नो बडीज डोमिनेंस। सो दिस वॉज द कंप्लीट स्ट्रेंजा। पहले स्ट्रेंजा में टाइगर की स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है। सेकेंड स्टेंजा में जो आंट जेनिफर है उनकी कंडीशन के बारे में बताया गया है, हाउ मच अफ्रेड एंड फियर शी वॉज हैविंग इन हर हार्ट। एंड लास्ट स्टेंजा में बताया गया है कि अगर आंट जेनिफर चली भी जाएंगी तो भी इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी पे किसी पे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो कंपैरिजन किया गया है आंट जेनिफर का सप्रेस्ड वुमेन और डिस्क्रिमिनेटेड और टॉर्चर्ड वुमेन सोसाइटी का जो एक सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा सताया हुआ है, और वुमेन इस कंडीशन में नहीं है कि वो इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सके। दूसरी तरफ वो जो मैन है वो सारी चीज़ें उनको प्रवोक करती हैं, वो सारी चीज़ें उनको एक तरह से बोला जाए तो उनको आगे बढ़ने का मौका देती हैं कि हाँ, इफ़ द वुमेन आर नॉट, दे कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट अस, एंड दे आर हैविंग अ काइंड ऑफ फियरलेस एटीट्यूड दैट कीप्स गोइंग ऑन। वो हमेशा वही रहते हैं। और ये बताया गया है कि इस तरह की औरतें जब चली भी जाती हैं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज और जितने भी वहाँ पे जो मेल हैं जिन्होंने इस समाज को बनाया है वही इसके हेड रहेंगे, वही जो वो चाहेंगे वही होगा। और जो वुमेन है अगर वो रेज करना चाहती भी हैं अपनी वॉल्यूम को, अगर वो कुछ इसके अगेंस्ट खड़े होना चाहती हैं तो उनकी वॉल्यूम को दबा दिया जाएगा। चलो अब इसकी पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले स्टैंजा नंबर 1, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रैंस, जो स्टैंजा नंबर 1 है। राइम स्कीम देखो, ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी, ये इसकी राइम स्कीम है। आई होप आप लोगों को राइम स्कीम आती होगी, एक बार देख लेते हैं। राइम स्कीम इज टेकन आउट आफ्टर लुकिंग एट द लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन। जो भी राइम करता है उससे रिलेटेड जो होता है वो राइम स्कीम, जो अल्फ़ाबेट होता है वो लिख दिया जाता है। मीन्स whatever the word is rhyming with the other word, the same alphabet will come with the second or third or any of the line which was given to the previous one. Like screen, अगर ये screen है, सबसे पहले हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिख देते हैं A, ठीक है। A के बाद ये यस A हमने लिख दिया, ये हो गया A। नाउ सेकेंड लाइन का अगर हम जस्ट वेट, हाँ ये हमने लिख दिया यहाँ पर A। जो सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है वो है ग्रीन, स्क्रीन, ग्रीन, स्क्रीन, ग्रीन, सेम साउंड तो सेम अल्फ़ाबेट आ जाएगा। ट्री, यहाँ पे ट्री, स्क्रीन अलग है तो यहाँ पे हमने अलग लिख दिया क्योंकि इसकी साउंड सेम नहीं है। ग्रीन ट्री अलग है तो हमने अलग अल्फ़ाबेट लिखा। नाउ सर्टेनिटी, अब सर्टेनिटी इज हैविंग द सिमिलर साउंड ऑफ ट्री।
ट्री सर्टेनिटी, ओके। तो सेम हमने अल्फाबेट लिख दिया बी। तो सेम ऐसे फिर उसके बाद ये जो है ए बी बी, वी विल राइट लाइक दिस। तो ये राइम स्कीम हो जाएगी। पोइटिक डिवाइस फर्स्ट देखो, इमेजिनरी। द पोइट हैज गिवन विजुअल डिस्क्रिप्शन अबाउट द टाइगर, ब्राइट टोपाज, डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ से इस लाइन में कौन सा है हमारा, इमेजरी, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 में कौन सी पोइटिक डिवाइस है, इमेजरी। इमेजरी क्या होती है, जहाँ पे हमको कोई इमेज दिखाई दे। वेन एवर यू आर रीडिंग एनी ऑफ द पर्टिकुलर लाइन, कोई लाइन पढ़ते पढ़ते जो भी उसमें है, जैसे टाइगर आया तो आपके माइंड में टाइगर की इमेज आ गई, तो यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस होगी, इमेज। टोपाज आया, टोपाज में आपको दिखने लगा हाँ सेमी प्रेशियस चमकता हुआ जो स्टोन है, तो वो टोपाज की आप ब्राइट टोपाज, वो उसकी इमेज आ गई आपकी। वर्ड ऑफ ग्रीन जैसे ही बोला तो फॉरेस्ट की इमेज आ गई। तो जहाँ पे भी इमेज मीन्स द राइटर इज ट्राइंग टू क्रिएट अ इमेज इन योर माइंड सो दैट यू कैन इन्फ्यूज और टेक इंटरेस्ट इन द पोम, तो यहाँ पे इमेजरी लिटरेरी डिवाइस हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, मेटाफर। द पोइट हैज यूज्ड ब्राइट टोपाज टू शो द वाइब्रेंट येलो कलर ऑफ द टाइगर। तो ब्राइट टोपाज यानी कि जो टोपाज है उसको किससे कंपेयर किया गया है, ब्राइटनेस से। ब्राइटनेस में क्या होता है, शाइन होती है, सेम एज जो स्टोन है उसमें क्या होती है, शाइन होती है। तो टोपाज कैसा है, ब्राइट है। तो इसको इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि द टोपाज इज एज ब्राइट एज द ब्राइटनेस ऑफ द सन, और जितनी भी येलो कलर की ब्राइटनेस होती है। और इस ब्राइट टोपाज को किससे कंपेयर किया गया है, विद द ब्राइट कलर ऑफ टाइगर। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, एक तो आपका हो गया टोपाज, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हुआ टोपाज और दूसरा हुआ आपका टाइगर, ठीक है। मेटाफर इज नॉट अ विजिबल लिटरेरी डिवाइस, ये दिखाई नहीं देती है, ये आपको ढूंढना पड़ता है आफ्टर नोइंग द मीनिंग। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को जब हम कंपेयर करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो वहाँ पर मेटाफर होता है। जैसे कि टोपाज है वो ब्राइट है, सेम ऐसे ही जो टाइगर है उसका भी ब्राइट येलो शाइनी कलर है। तो दोनों को जो कंपेयर किया जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक को, एंड दैट्स व्हाई द लिटरेरी डिवाइस विल बी मेटाफर। मेटाफर में पूरा लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जो फ्रेज है ब्राइट टोपाज, और इसको अगर बोला जाता है कि हाँ एक्सप्लेन करो कि ब्राइट टोपाज को किससे कंपेयर किया गया है, तो वी कैन से द टाइगर, ओके, द ब्राइट येलो ब्राउनिश टाइगर, उससे उसकी शाइन को कंपेयर किया गया है, मेटाफर लिटरेरी डिवाइस है। नेक्स्ट देखो, एलिटरेशन। इट इज द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज द स्टार्ट क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। रिपीटेशन ऑफ अ लेटर, रिपीटेशन ऑफ अ लेटर, कौन सा लेटर होता है, यहाँ पे होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट लिटरेरी डिवाइस को, कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटेशन होता है। द रिपीटेशन ऑफ द लेटर सी इन शिवलरिक सर्टेनिटी। लास्ट वाली लाइन देखो, ये लाइन नंबर 4 में लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, लाइन नंबर 4, और ये कौन सा था, लाइन नंबर 2 इसमें है। तो यहाँ पे शिवलरिक सर्टेनिटी, शिवलरिक में शिवलरिक स्टार्ट विद सी, सर्टेनिट स्टार्ट विद सी, एंड बोथ आर कॉन्सोनेंट। तो जब कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स आते हैं विद द सेम कॉन्सोनेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, वहाँ एलिटरेशन होता है। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट्स। Prominent sound of consonant S in Jennifer's tigers prints across the screen. जो प्रोमिनेंट साउंड का मतलब किसी एक कॉन्सोनेंट की साउंड जब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, प्रोमिनेंट का मतलब आपको वो साउंड बार बार सुनाई देती है। इट इज़ जनरली कमिंग एट द लास्ट ऑफ द वर्ड, सबसे, क्योंकि जब आप कोई वर्ड बोलोगे स्टार्टिंग में उसका वर्ड या साउंड नहीं आएगा, लास्ट में उसका वर्ड और साउंड आता है जो बार बार रिपीट होता है। तो जो लेटर है जिसका साउंड सबसे ज़्यादा बार सुनाई दे रहा है एक लाइन में, अगर एक लेटर का साउंड बार बार आ रहा है तो वहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस होगा, कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पे देखो, जेनिफर्स, टाइगर्स, प्रेंस, यहाँ पे क्या आया देखो, जेनिफर्स, टाइगर्स, प्रेंस अक्रॉस, this sound is coming, sound, okay, this consonant letter sound is coming again and again, and that's why यहाँ पे कौन सा literary device होगा, consonants. तो Jennifer's tigers prints across the screen, ये है आपका line number 1, right? Next देखो, assonance, prominent sound of vowel E. आपका एलिटरेशन में तो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर होता है और एसोनेंस में रिपीटेशन ऑफ
वॉल साउंड होता है। अब यहाँ पे वॉल साउंड का रिपीटेशन है ई। अब एलिटरेशन में एक चीज़ है कि एलिटरेशन में द कॉन्सोनेंट दैट लेटर शुड कम इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, बट एसोनेंस में ऐसा नहीं है। दैट वॉल लेटर, जो वॉल साउंड है वो कहीं भी आ सकता है, इन द बिगिनिंग और इन द लास्ट, इन द मिडल। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब देखो यहाँ पे ई का कितना सबार रिपीटेशन है, यहाँ पर ई, देन फियर, देन द, देन मैन, देन ई, देन बीनीथ में 2 बार, देन द, एंड देन अगेन डबल ई। तो ये क्या है, रिपीटेशन ऑफ द वॉल साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है लिटरेरी डिवाइस, एसोनेंस। दे डू नॉट फियर, ये हुआ हमारा लाइन नंबर 3, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। Anaphora, it is the repetition of the word at the start of the 2 or more consecutive lines. Repetition of the word, ये पूरे word का repetition होता है, एक word हो सकता है, 2 word हो सकता है। Consecutive line is called line in sequence, ठीक है। Consecutive का मतलब line in sequence, यानी कि line number 1, line number 2, ऐसा नहीं है कि line number 1 आ गया उसके बाद line number 3 आया, नो, लाइन सीक्वेंस में होना चाहिए, तभी वर्ड जो है वो रिपीट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कहाँ होना चाहिए, इन द स्टार्ट या इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन द स्लीक शिवलरिक। लाइन नंबर 3 देखो आप, सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है, लाइन नंबर 4 भी सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस होगा। तो यहाँ पे कौन सी लाइन में है, लाइन नंबर 3 एंड 4, ठीक है। आई होप these all imagery, metaphor, alliteration, consonants, assonance and anaphora are clear to you. First stanza. Second stanza देखते हैं। Aunt Jennifer's finger fluttering through the woo. अब सबसे पहली poetic devices है alliteration. It is the repetition of the letter start at the close V. कौन सा letter मैंने बताया था आपको, consonant। alliteration में consonant literary device होता है, और ये they place the word, the repetition of the letter F in fluttering fingers, ठीक है। fluttering fingers, ये रहा fingers and fluttering, fingers fluttering दोनों को साथ साथ आ रहे हैं, दोनों सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एलिटरेशन हो जाएगा। ये है लाइन नंबर 1। personification, the poet has personified the ring by using the word sit। अब रिंग कैसी है, पहले आप ये देख लीजिए। पर्सन इज कॉल्ड, ये हुआ हमारा लिविंग, और फिक्शन होता है नॉन लिविंग। तो जब पोइट किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बना के प्रेजेंट करता है पोम में, तो ये पर्सोनिफाइड कर रहा है, मतलब उसको पर्सन बना दिया है, उसको लिविंग बना दिया है, वहां पे पर्सोनिफिकेशन होता है। अब रिंग कैसी होती है, रिंग इज नॉन लिविंग, राइट। रिंग कैसी होती है, रिंग होती है नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए आप कौन सा, ये वर्ड तो यूज नहीं करोगे ना, ये तो किसके लिए आएगा, ये तो लिविंग के लिए आएगा। तो यहाँ पे लिविंग, रिंग को कैसा बना दिया, रिंग सिट। अब यहाँ पे रिंग सिट बनाया है, तो रिंग कैसा है, रिंग नॉन लिविंग है, उसको सिट बनाया है, यानी कि पर्सोनिफाइड किया है। क्योंकि क्या अंगूठी बैठ सकती है, नहीं अंगूठी तो नहीं बैठ सकती, नॉन लिविंग है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस होगी, लिटरेरी डिवाइस होगी पर्सोनिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे ये बताया है, अंकल्स वेडिंग बैंड सिट। तो ये जो वेडिंग बैंड है, वेडिंग बैंड क्या है, रिंग, और रिंग को क्या बनाया गया है, सिट्स, तो इसीलिए यहाँ पे ये होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लाइन नंबर 3 एंड 4, क्योंकि ये लाइन नंबर 3 के बाद सिट्स 4 में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, हाइपरबोल। द पोएट हैज डन एक्सैगरेशन अबाउट द रिंग बाय टॉकिंग अबाउट इट्स मैसिव वेट। हाइपरबोल का मतलब होता है बहुत बड़ा चढ़ा के बात करना। अब रिंग कैसी होती है, रिंग तो बहुत हल्की सी होती है, उसका इतना ह्यूज वेट कहाँ हो सकता है, बट यहाँ पे क्या बोला है पोइट ने, सिट्स हेवीली मैसिव वेट ऑफ रिंग, मैसिव वेट। अब रिंग तो बहुत हल्की सी छोटी सी होती है, उसका बहुत ज़्यादा वेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे पोइट ने क्या किया है, एक्सिगरेट किया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला है, एंड दैट्स वाई हाइपरबोल विल बी देयर इन लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 पे होगा। नेक्स्ट देखो, पैराडॉक्स। हियर समवन हुज फिंगर्स आर फ्लटरिंग इज क्रिएटिंग समथिंग दैट रिक्वायर्स सर्टेनिटी। नाउ पैराडॉक्स होता है जब दो अपोजिट सिचुएशंस होती हैं। कैसी होती हैं, अपोजिट, या आप बोल सकते हो कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन होती है। अब यहाँ पे देखो, उनकी जो फिंगर्स हैं वो कैसे कर रही हैं, वो मूव नहीं कर पा रही हैं, दे आर अनबैलेंस्ड, बट वो क्या बनाना चाह रही है, एक बैलेंस्ड फिगर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, अगेन इट इज नॉट विजिबल, दिस यू हैव टू टेक आउट आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट, राइट। तो यहाँ पर क्या किया है उन्होंने कि जो फिंगर्स हैं वो कैसी हैं, वो तो फ्लटरिंग है, वो कैसी हैं, वो अनस्टेबल है।
अगर आप इसको बोलोगे तो वो कैसी हैं, वो अनस्टेबल हैं, अनकंट्रोल्ड हैं। एंड आपको क्या चाहिए, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी कैसी होती है, स्टेबल होती है। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों जो अगर देखा जाए कंडीशन, सिचुएशन, एक्सप्रेशन है, वो दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पैराडॉक्स। नेक्स्ट देखो, इंजैबमेंट। द सेंटेंस इज बीइंग कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क। इट हैज बीन यूज्ड इन द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन। अब यहाँ पे देखो आप, ये अगर बोला जाए तो अगर ये स्टैंजा आप बोलोगे तो हाउ मेनी लाइन्स यू कैन सी, 4 लाइन्स, राइट। तो एक लाइन के बाद कुछ पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए, सेमी कोलन, कॉमा, फुल स्टॉप, समथिंग मस्ट बी, शुड बी देयर, बट यहाँ पे नहीं है। देखो फर्स्ट लाइन ये फिनिश हो गई, बट यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन नहीं है। सेकेंड लाइन के बाद यहाँ पर क्या है, फुल स्टॉप। तो हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन में क्या है, फर्स्ट लाइन में इंजैबमेंट है। तो लाइन नंबर 1, इंजैबमेंट वहां लिखते हैं जहां पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, लाइक दिस लाइन फिनिश्ड हियर बट नो पंक्चुएशन मार्क, तो यहाँ पे कौन सा होगा, इंजैबमेंट। सेम ऐसे ही लाइन नंबर 3, इट्स फिनिश बट नथिंग इज देयर, तो यहाँ पे लाइन नंबर 3 में भी कौन सा होगा, इंजैबमेंट। I hope these are clear. Alliteration, personification, hyperbole, paradox and enjambment. Some are visible that you can see, some are not visible that you have to understand. Last paragraph, alliteration, it is the repetition of the letter, consonant letter at the start of closely placed word. यहाँ पे है P का repetition है prancing, proud. अब यहाँ पे prancing, proud देखो लास्ट लाइन में आ रहा है, both words are coming together, पास पास आ रहे हैं, both starts with P, that is a consonant sound. तो लाइन नंबर 4 में है alliteration. Next देखो, the sentence is being continued to the next line without the use of any punctuation mark. It has been used in the first and third line. ये हमारा है enjambment. I think यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। enjambment, enjambment कौन सा है, इसमें भी देखो सेम वही है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है लाइंस में, एंड इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, इंजैबमेंट लिटरेरी डिवाइस आ जाएगा। इमेजरी देखो, द पोइट हैज गिवन विजुअल डिस्क्रिप्शन अबाउट द टाइगर। यहाँ पर इमेजरी आपको थ्रू आउट पोइम में दिखने को मिलती है, एम्ब्रॉयडरी, स्क्रीन, रिंग, टाइगर, देन फॉरेस्ट, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप बोलो ये शी वॉज जस्ट डूइंग द एम्ब्रॉयडरी, सारी चीज़ों की इमेज बन रही है आपके माइंड में, तो आप इमेजरी लिख सकते हो, क्योंकि उन्होंने टाइगर की इमेज क्लियरली दी है। बार बार जहाँ जहाँ भी टाइगर का यूज़ हुआ है, टाइगर का नाम आया है, वहाँ पे इमेजरी लिटरेरी डिवाइस हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लाइन नंबर 3 में, वैसे तो पूरी पोम में है, यहाँ पे लाइन नंबर 3, द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो prancing, proud and unafraid। इन सब की टाइगर की कैसा, अगर आपको बोलते टाइगर क्या कर रहा है, प्रैंस कर रहा है, तो आपको इमेज आ जाती है कि हाँ वो जंप कर रहा है, वो बहुत प्राउड है, मतलब उसको किसी का भी डर नहीं है और वो डोमिनेंस करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट इज देखो कॉन्ट्रास्ट, देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आंट जेनिफर्स एंड हर टाइगर। यहाँ पे दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है। आंट जेनिफर इज वेरी वीक एंड स्कैर्ड व्हाइल हर टाइगर्स आर fearless and proud. This is means after the analysis of the poem, or we can say the concluding literary device of the poem. तो आप कॉन्ट्रास्ट को बोल सकते हो, ये कब हमने किया है, ऑन द टाइम ऑफ कॉन्क्लूजन, तो ये हो जाएगी कॉन्क्लूडिंग लिटरेरी डिवाइस, ठीक है। ये हमारी जो हमने कहा है कि पूरे हमने देखने के बाद पता चला है कि आंट जेनिफर खुद तो इतनी सप्रेस्ड है, वीक है, डरी हुई है, और वो क्या बना रही है, वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड फियरलेस टाइगर को बना रही है। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट हो जाती हैं। तो लिटरेरी डिवाइस हमारी यहाँ पे डिस्कस हो चुकी है। लेट्स मूव ऑन टू, हाँ, सम ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस और भी हैं, भी थोड़ी सी देखते हैं। पैराडॉक्स, here the poet has shown a woman who has tortured and mastered by her husband and created something free। यहाँ पे भी देखो सेंस कैसा आ रहा है, एक्सप्रेशन आ रहा है जो वो अलग आ रहा है बिल्कुल, मतलब एक तरफ उन्होंने सप्रेस्ड वुमेन को बनाया है, एक तरफ पावरफुल मैन को बनाया है। पैराडॉक्स यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन आ रहा है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, द पोइट यूज्ड टेरिफाइड हैंड्स। The poet used terrified hands to show that Aunt Jennifer was terrified even after her death. Terrified hands यहाँ पे बताया जाए। ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है, जब किसी चीज का ट्रांसफर हो, ठीक है। एपिथेट का यहाँ पे मतलब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए, नाउन के साथ दिखाया गया है, वो उस नाउन के लिए नहीं आया है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताती हूँ, टेरिफाइड कैसा है, टेरिफाइड इज एन एडजेक्टिव, राइट। और हैंड्स क्या है, हैंड्स एक नाउन है। अब टेरिफाइड हैंड्स,
ये जो टेरिफाइड है ये हैंड्स के साथ आया है, बट एग्जैक्टली हैंड्स टेरिफाइड नहीं है। टेरिफाइड कौन है? आंट टेरिफाइड है। यानी कि यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव है वो किसके लिए आया है? आंट के लिए आया है, बट यहाँ आंट लिखा नहीं गया है। तो ये बोल सकते हैं जब हम एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर देते हैं, आया तो ये इसके लिए है बट हमने ट्रांसफर किसके साथ कर दिया? हैंड के साथ कर दिया, वहां पे होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। अगेन इट इज विजिबल लिटरेरी डिवाइस बट नीड टू बी अंडरस्टूड, ओनली दैन यू कैन टेल. Now next is synecdoche. Here terrified hands not only talk about the hand being terrified but her whole body. Synecdoche का मतलब होता है when you are presenting a little one but उसका meaning बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. This is called synecdoche. तो यहाँ पे क्या बताया गया है? terrified hand. अगर हम terrified hand की बात करें तो बस hand, यानी कि छोटे से हम hands की बात कर रहे हैं, दोनों hand की, बट उसका meaning क्या है? the whole body. कौन है टेरिफाइड? द होल बॉडी. तो होल बॉडी एक बहुत मीन्स क्या हो गया? वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल थिंग बट दैट रिप्रेजेंट अ वेरी बिग और ह्यूज थिंग. तो यहाँ पे सिनेक्डोट लिटरेरी डिवाइस हो जाता है. अगैन इट इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग. नाउ एसोनेंस, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ वॉल साउंड. वॉल साउंड की प्रोमिनेंसी हो रही है. आंट इज डेड, हर हैंड्स आर विल टाई. अब यहाँ पे देखो आई, यहाँ पे आई का हो रहा है, आई वॉल साउंड है. यहाँ पे एसोनेंस सिर्फ वॉल साउंड में आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वॉबल में. ये इसमें आया, देन अगेन टेरिफाइड, एंड देन विल में आया, एंड देन आई में आया. तो ये हमारी कौन सी लाइन है? आंट इज डेड एंड टेरिफाइड हैंड. ये हो गई हमारी लाइन नंबर 1. नेक्स्ट देखो ओ का, गो ऑन, प्रेंसिंग, प्राउड में है, एंड अनअफ्रेड. यहाँ पे एक से ज्यादा बार यूज होना चाहिए एंड यू कैन जस्ट फाइंड. तो ये हमारा हो गया लाइन गो ऑन प्रेंसिंग, ये लाइन नंबर हमारी 4 है. देन ई का रिपीटेशन है, रिंग्ड विद ऑर्डील्स, शी एंड मास्टर्ड, यहाँ पे डबल ई है. तो ये रिंग्ड विद ऑर्डील्स, ये हुई आपकी लाइन नंबर 2. ठीक है, तो ये एसोनेंस है. एसोनेंस और कॉन्सोनेंस एंड एलिटरेशन इनका बहुत यूज होता है, बिकॉज विदाउट द यूज ऑफ कॉन्सोनेंटेड लेटर यू कैन नॉट राइट एनीथिंग. तो एसोनेंस और कॉन्सोनेंस तो बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं. बाकी के जो इस तरह के हैं जो मेन हैं, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करने ज़रूरी है. अब जैसे मान लो एग्जाम में कोई लाइन आती है कि जस्ट टेल के विच लिटरेरी डिवाइस इज देयर, आपको नहीं समझ आ रहा है क्योंकि इनके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है. अगैन एंड अगैन, यू आर नॉट हैविंग सो मच टाइम. इफ़ यू हैव बीन डन, इफ़ यू आर वेल नोन अबाउट these literary devices, then you can do poetic devices. आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको नहीं समझ आता है, just try to find out the visible poetic devices. अगर कोई दिया है तो कॉन्सोनेंस, एसोनेंस या एलिटरेशन होगा ही होगा. एलिटरेशन के भी बहुत कम चांसेस हैं, बट एसोनेंस और कॉन्सोनेंस मिल जाता है. सबसे प्रोमिनेंट होता है एसोनेंस, इजीली फाइंड आउट करना. जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा वॉल साउंड रिपीट हो रहा है. अगर ओ, ए, ई, क्योंकि इनके बिना तो कोई लाइन लिख ही नहीं सकते, ठीक है. तो ये एक मैंने आपको आइडिया दिया है कि अगर कोई लाइन आती है पोएटिक डिवाइस के लिए, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो ट्राई टू फाइंड आउट एसोनेंस विद द रिपीटेशन ऑफ एनी ऑफ द वॉल साउंड एंड यू कैन राइट. स्पेलिंग्स वगैरह सब देख लेना एक बार. एसोनेंस आप लिख दोगे, एसोनेंस होगा ही होगा वहाँ पे उस लाइन में, राइट. चलो अब आगे क्या देखना है हमको? कंक्लूजन ऑफ द पोएम. इट कंक्लूड्स बाय सेइंग दैट द पोएट्स आर्ट वर्क विल लिव ऑन आफ्टर हर, रिमाइंडर ऑफ द ड्रीम्स शी नेवर अचीव्ड. क्या है उनका जो आर्ट वर्क है, आर्ट वर्क जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी किए थे, क्या टाइगर्स का जो बनाया था उन्होंने, एम्ब्रॉयडरी जो एम्ब्रॉयडरी टाइगर्स बनाए थे, वो हमेशा रहेगा. वो रहे या ना रहे, उनके ड्रीम्स रहे या ना रहे, वो रहेगा. This poem of 3-4 lines stanza visualizes a relative whose leisure pursuit is needlework. लेजर आपका होता है फ्री टाइम या कोई हॉबिचुअल आपका इंटरेस्टिंग वर्क जो आप करते हो अपने फ्री टाइम में. तो वो ये बता रहे हैं कि हाँ, जो हम अपना फ्री टाइम में जो भी हम वर्क करते हैं, यहाँ पे आंट जेनिफर का क्या था? नीडल वर्क. उसके थ्रू वी आर जस्ट स्पेसिफाइंग, वी आर सेटिस्फाइंग आर सेल्फ एनी हाउ. ओके, क्योंकि बाकी टाइम पे तो हमको ऑब्वियसली वी हैव टू जस्ट पुश आवर सेल्फ इन कंप्लीटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओनली लेजर टाइम होता है, हॉबी टाइम होता है, जब हम अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं. एंड हियर आंट जेनिफर रिवील्स हर ड्रीम्स ऑफ अ हैप्पियर लाइफ इन हर नीडल वर्क. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है नीडल वर्क के थ्रू कि आंट जेनिफर इस तरह की लाइफ चाहती थी. हैबिचुअल वर्क में जो भी आप काम करोगे, इंटरेस्टिंग वर्क में, वो आप अपनी पसंद का करोगे ना, किसी और के कहने से नहीं करोगे. तो आंट जेनिफर, व्हाई शी वाज एम्ब्रॉयडरिंग द prancing and fearless tiger? Because she wanted to be in that expression as well. She wanted to be like that. वो भी चाहती थी कि मैं भी इसी तरह से जंप करूँ, fearless, मुझे किसी का भी डर नहीं हो. एंड वो इस चीज़ को कैसे सेटिस्फाई कर रही हैं? थ्रू द needle work.
and from the titles given to the adults it seems as if the speaker is a child. ऐसा लग रहा है कि जैसे जो स्पीकर है वो कैसा है, वो चाइल्ड है, वो बच्चा है. कौन है स्पीकर यहाँ पर? जो बताया जा रहा है एंड्रीन. ठीक है, पोइटेस है जो हमारी एंड्रीन है वो बता रही हैं. अब चाइल्ड क्यों है? क्योंकि वो यहाँ पे स्पीकर को चाइल्ड क्यों बोला है? स्पीकर को चाइल्ड इसीलिए बोला है क्योंकि वो साफ साफ विजिबल है. छोटा सा बच्चा भी अगर देखेगा तो वो यही बोलेगा कि आंट जेनिफर जब एम्ब्रॉयडरी करी तो उनके हाथ कांप रहे थे. अब वो कांपने का क्या सेंस लगा सकता है कि हाँ वो बहुत डरी हुई हैं. जो विजिबल है, जो चीज़ें जैसे मैंने आपको पोइटिक डिवाइस में बताया, तो उसके थ्रू आप अपने एक्सप्रेशंस दे सकते हो. बट द इनडायरेक्ट मीनिंग, द डेप्थ ऑफ द पोम दैट वाज क्रिएटेड बाय इन सो सिंपल वर्ड्स बाय एंड्रीन, दैट नीड टू बी अंडरस्टूड. टोन देखो पोइम की. while the poem is theoretically dazzling, the subjects that art induce beyond the human life and that suffering may be traded through the art and almost not original. उसमें बताया गया है, theoretically बताया गया है कि जो सब्जेक्ट है द सब्जेक्ट दैट आर्ट इंड्यूस. सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे टाइगर है जिसको आर्ट के थ्रू बनाया जा रहा है और जो ह्यूमन लाइफ से बिल्कुल अलग है, बियॉन्ड है. मतलब ह्यूमन लाइफ बहुत सप्रेस्ड है, डोमिनेटेड है, जो टाइगर है वो बिल्कुल उससे अलग है. एंड जो सफरिंग है, जो ह्यूमन लाइफ कैसी है, सफरिंग मे बी ट्रेडेड थ्रू द आर्ट. उसको डिनोट किया जा सकता है, उसको सिंबलाइज किया जा सकता है थ्रू द आर्ट वर्क कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था. ठीक है, बट ये ओरिजिनल वर्क नहीं है, इसमें आप ओरिजिनलिटी नहीं बता सकते हो. लाइक जैसे आंट जेनिफर जो टाइगर बना रही है वो सिर्फ उनकी इमेजिनेशन है, वो ऐसा चाहती हैं, उनका एस्पिरेशन है, उनका ड्रीम है, लेकिन वो ओरिजिनलिटी नहीं है. Rich, however, uses the resourceful images to reorganize these conventional theme in a new way. Now, conventional theme जितनी भी conventional होती हैं, traditional theme होती हैं, वो सारी चीज़ें use कर सकते हैं. Rich, however, uses a resourceful image. Now, resourceful image इस तरह की image बनाना जो आपको कुछ चीज़, रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? रिसोर्स का मतलब जिसको आप यूज़ कर सको. तो यहाँ पर जो वो इमेज बना रही है वो बिल्कुल उनसे अलग है. आंट जेनिफर कहाँ बिल्कुल सप्रेस्ड, उन्होंने कितनी रिच इमेज बनाई है, वो है टाइगर की इमेज, जिसको आप उससे कंपेयर, मतलब वो अगर चाहती है एंड्रीन रिच, वो बना सकती थी किसी मेल का एम्ब्रॉयडरी बना सकती थी, अपने हस्बैंड का बना सकती थी, क्योंकि वो जो डिपिक्ट करना चाहती है टाइगर के थ्रू, एग्जैक्टली शी जस्ट वांटेड टू डिपिक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ हस्बैंड एज वेल. वो उनके बारे में बिल्कुल वैसा ही सोचती हैं. तो ये उन्होंने जो रिच इमेज ली है, रिसोर्सफुल इमेज ली है, वो इस थीम को एक नया रास्ता देती है. एंड इवन हिंट्स, और हिंट्स भी देती है. In the image of Aunt Jennifer, weighed down by an oppressive marriage at the feminism that would invade her later work. जो कि सप्रेस्ड दिखाया गया है, ऑप्रेसिव मैरिज दिखाई गई है आंट जेनिफर को, और जो वेट डाउन है, बर्डनड हैं उस ट्रेडिशन या ऑर्डील से जो उनकी लाइफ में है, और एट द फेमिनिज्म दैट वुड इन्वेड हर लेटर वर्क. इन्वेड इज कॉल्ड टू अटैक हर लेटर वर्क. Later work is called after her departure. Again the work was there, that will be known by that कि हाँ वो terrified aunt थी, वो इतनी डरी हुई सी रहती थी, उन्होंने ये चीज़ बनाई है. Yet the poem remains quite impersonal. ये अभी भी impersonal रहती है. The reader sees Aunt Jennifer's but is not all aware of the voice of the poem's narrator. Aunt Jennifer का दिखाई देता है, लेकिन ये चीज़ उनको तभी, इसका जो मैसेज है, इसका जो टोन है, वो उनको ही दिखाई देगा who has gone through, who has closely looked or witnessed about all these things, जिन्होंने अपने घर में देखा है या जिन्होंने समाज में देखा है, कहीं पढ़ा है, ओके, या खुद महसूस किया है. बट वही जो समझ सकते हैं कि एक्चुअली में जो नरेटर है वो क्या कहना चाहती है. अदरवाइज यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनको आंट जेनिफर, हाँ, आपको एक स्टोरी की तरह लगेगा कि हाँ एक सप्रेस्ड वुमेन थी जिसकी हमने स्टोरी पढ़ी है. तो ये हम बोल सकते हैं जो टोन है पोम की, वो रीडर अपना जो है वो अलग कनेक्ट करेगा अगर उसने बहुत ज़्यादा नहीं देखी. जैसे आप लोग हो, आप लोग अभी पढ़ने लिखने वाले हो, आप लोगों ने इतना नहीं देखा, एक्सपीरियंस नहीं किया, दिस इज़ जस्ट अ पोम फॉर यू. बट जो राइटर हैं, जो पोइटेस हैं, उनके थ्रू अगर हम देखें तो वो क्या दिखाना चाहती है, सोसाइटी की जो रियलिटी है, शी जस्ट वॉन्टेड टू प्रेजेंट दैट. मैसेज क्या है पोम का? वुमेन हैव बीन सब्जेक्टेड टू पेट्रारिकल नॉर्म्स. नाउ पेट्रारिकल नॉर्म्स हम बोल सकते हैं वही मेल डोमिनेंट सोसाइटी, यानी कि मेल के बनाए हुए जो नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वुमेन को वो मानने पड़ते हैं. एंड हैड टू लिव अंडर द डोमिनेंस ऑफ द मेल थ्रू आउट द एजेस. Even in the poem, Aunt Jennifer is a victim of failed marriage and patriarchal husband who controls her life.
तो पेट्राइकल हस्बैंड यानी कि उनका जो हस्बैंड है वो भी मेल डोमिनेंस है, वो उन पे डोमिनेंस करता है, वो उन पे डिस्क्रिमिनेशन करता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनको चलाता है, उनके लिए कोई लिबर्टी नहीं है, वो बताया गया है यहाँ पर। यहाँ पे पोइम गिव्स मैसेज, तो ये हमारा पोम का एसेंस रहा। क्या मैसेज देती है? दैट वुमेन emancipation and upliftment not by revolting against their husbands but by the expressing themselves in art। अब वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो जो वुमेन का फ्रीडम है, उनका जो वी कैन से ना द लिबर्टी टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर वे, वो कर सकती हैं, वो सिर्फ आर्ट के थ्रू कर सकती हैं। कोई भी इस तरह का उन्होंने आर्ट वर्क लिया, हॉबी लिया, ये अभी जैसे आंट जेनिफर का एम्ब्रॉयडरी है, एनीबडी कैन टेक द राइटिंग एज अ पार्ट, या अपने सोशल एक्टिविस्ट आप बन के इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, बट आप उसके अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू कैन नॉट गो अवे फ्रॉम योर फैमिली। आप अपनी फैमिली से बाहर कहाँ जाओगे? आपको रहना तो वही है। तो वट एवर यू वॉन्ट टू, आपको या तो झेलते हुए रहो या आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको किसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आर्ट एक वर्क बताया गया है, मैसेज दिया गया है कि आर्ट इज़ फ्री अनलाइक वुमेन्स मैरिड लाइफ। बिल्कुल फ्री है, मैरिड लाइफ की तरह नहीं है जो बाउंड है, जो एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में फ्री। आर्ट एकदम बाउंडलेस है, लिमिटलेस है। इट इज़ एवर लास्टिंग अनलाइक ह्यूमन्स लाइफ एंड फाइनली इट इज़ द वर्ल्ड इन विच वुमेन कैन एस्केप एंड फील बेटर। ये एक ऐसा जगह है, ये एक ऐसा वी कैन से द वे है जिसमें वुमेन अपनी थोड़ी परेशानियों को भूल जाती हैं, अपनी जो रोज़मर्रा का जो डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह का जो उनका वी कैन से ना द सप्रेस्ड जो लाइफ स्टाइल हो गया है, जो उनका रूटीन हो गया, उससे थोड़ा सा बाहर आ जाती हैं, जिससे कि वो अगली सुबह वो फिर से सब झेलने के लिए रेडी हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हमको वुमेन को फ्री करना है, बॉन्डेज से फ्री करना है, जो जिस बॉन्ड में बंधी हुई हैं वो, उससे आप अपनी मैरिज के बॉन्ड से फ्री नहीं हो सकती हो, बट एक तरह से बॉन्डेज को, लेकिन अब अपनी उस जो कांस्टेंट है उसको एक्सप्रेस तो कर सकते हैं हम। तो अगर हम बोलें कि इस पोम के थ्रू क्या मैसेज दे सकते हैं हम ऐसी वुमेन को कि आप अब नहीं जा सकती, बट आर्ट के थ्रू यू कैन टेक आउट द वे टू एक्सप्रेस ऑल योर डिज़ायर। कहीं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, somehow indirectly I have taken out whatever was there in my heart. Okay, so with this we have completed Aunt Jennifer's Tiger. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, एक्सट्रैक्ट बेस्ड आते हैं, डायरेक्ट लिटरल मीनिंग से आते हैं, एंड इनडायरेक्ट मीनिंग जो इसमें है उससे आते हैं। पोइटिक डिवाइसेस आर अबंडेंस, बहुत सारी पोइटिक डिवाइसेस हैं, प्लीज़ गो थ्रू दैट। अगर आपके कोई थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट या लॉन्ग आंसर में, उसमें आपको ये मैसेज टोन और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, समरी ऑफ द पोम, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। आई विल ट्राई टू जस्ट गिव यू द समरी एज वेल ऑफ ईच एंड एवरी पोम, सो इफ यू आर नॉट हैविंग द टाइम इवन दैन जस्ट हैव अ लुक ऑन द समरी सो दैट यू कैन नो द एसेंस ऑफ द पोम। ओके, सो जो भी हमने पोम अपनी कंप्लीट कर ली है सबकी समरी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गो थ्रू विद द पोम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। राइट, टेक केयर।